Welcome students in biology class. In previous video we discussed about the asexual reproduction. We also discussed about the what is the importance, misadvantage and disadvantages of asexual reproductions. Today we again discuss the one part of the asexual reproduction, that is the vegetative propagules or vegetative propagations. This is also known as the vegetative reproductions. So, what is the vegetative propagations? What is the vegetative reproductions? The vegetative propagation is the formation of new plants from vegetative units such as buds, tubers, rhizome, etc. Means development of new plant from vegetative part of the plants. That is clear? These vegetative units are called vegetative propagules. इसी वेजिटेटिव की जो यूनिट्स हैं, जैसे आपको बताएं बर्ड्स है, ट्यूबर्स है, राइजोम्स है, ये सब क्या है उसकी यूनिट्स हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपिगुल्स. इसको हम यूनिट को वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के यूनिट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपिगुल्स कहते हैं. दैट इज क्लियर? ओके. Vegetative propagation या vegetative reproduction, there are two types. One is the natural method of vegetative propagations, another is the artificials. Okay, we discuss here one by one. First we discuss about the natural methods of vegetative propagations. What is the natural methods? In these methods, vegetative propagules means somatic parts of the plant detached from the body of the mother and develop into new plants under suitable conditions. That is clear? पेरेंट पॉट्स जो बॉडी है उसको डिटैच कर करके मदर प्लांट से उसको हम डिफरेंट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन, दैट इज द रूट्स. रूट में दोनों तरह के आपके रूट्स है, जैसे आपका एडवेंटेशियस रूट एंड टैप रूट्स. एवरीवन नो अबाउट द व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू? ओके. टैप रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटेशियस बड्स टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. ठीक है, जैसे इसमें डलवर्जिया. डलवर्जिया यू नो अबाउट देम? Dalbergia siso. This is the scientific name of the sesame plant. Okay. Guava, Albizia, Murraya species. इसमें क्या होता है? दिस द जो टैप रूट्स है इसके थ्रू फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट्स का. एंड सम एडवेंटेशियस roots, advantageous buds that is developed on the fleshy roots. For example, sweet potato, dahlia, etc. Okay. Second one is the underground stem. Different type of underground stem structure can be take part in vegetative propagations. ठीक है, just like इसमें first one is the tuber. Tubers, they have buds over their nodes or eyes. For example, in case of potato. Clear? Second one is the bulb. Bulbs are underground condensed shoots which have one or more buds. ठीक है, वो वन or more buds उसमें प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ गार्लिक, ऑनियन. ओके. थर्ड वन इज द कॉर्म. These are unbranched, swollen underground stems having circular nodes that have buds for growth of daughter plants. For example, जिमिकन, कोलोकेसिया. इस तरह के प्लांट में कॉर्म फॉर्मेशन होता है. ठीक है. जिमिकन जानते हैं किसे कहते हैं आप? शकरकंद को. ओके. शकरकंद जो होता है उसको हम जिमिकंद कहते हैं. नेक्स्ट वन इज द राइजोम.
Rhizomes are main underground stems which store food for the perenniation during the unfavorable conditions. ठीक है, राइजोम में फूड स्टोरेज होता है एंड दीज हैव बर्ड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू एरियल शूट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद उससे न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होता है और उस बर्ड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. जस्ट लाइक इन केस ऑफ बनाना, जिंजर, टर्मरिक, etc. That is clear. Next one is the suckers. These are slender underground branches that develops from base of aerial shoot, grow for the some distance and for new serial shoots or crowns. Normally you know about them. इसमें इस तरह का प्लांट होता है जो अंडरग्राउंड तो ग्रोथ करता है, उसका कुछ पार्ट एरियल होता है, मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, फिर अगेन दैट इज ग्रोथ जस्ट लाइक इन केस ऑफ मिंट, क्राइसेंथेमम. मिंट मीन्स पुदीना. पुदीना देखो किस तरह से ग्रोथ करता है, कुछ समय आपका लैटरल चलता है, फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, फिर लैटरल, फिर ग्रोथ. ठीक है, एरियल पार्ट मतलब ऊपर की तरफ वो ग्रोथ करता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द क्रीपिंग. Creeping stems. These are normally there are three types which take part in the vegetative propagations. First one is the runner. Runner क्या होता है? These are narrow grain horizontal branches which develops at the base of crowns and roots at interval where new crowns are also form. Breaking of runner helps in vegetative propagations. ठीक है, इस तरह का क्या होता है, वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लैटरली ग्रोथ करता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ सेंटेला, इन केस ऑफ ग्रासेस. ग्रास देखो धूप को कैसे ग्रोथ करता है, उसके नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, नोड्स का फॉर्मेशन होता रहता है और वो अर्थ सरफेस से अटैच हो जाता है. ठीक है, क्योंकि नोट से क्या निकलती है, रूट्स निकलते हैं. सेंटेला यू नो अबाउट देम, किसको कहते हैं, ब्राह्मी को. ओके, शंखपुष्पी जो. ओके, इसमें भी इस तरह का ग्रोथ होता है, रनर. नेक्स्ट वन इज द स्टोलन्स. दीज आर द आर्क्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दैट डेवलप्स एट द बेस ऑफ क्राउन. ठीक है, एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोग्रेशन लाइक रनर. इसमें भी बिल्कुल रनर की तरह ही होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस इसमें ग्रोथ होता है, इसमें ब्रांचेस निकलता है, ग्रोथ करता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी, वेलिस्नेरिया. एंड लास्ट वन दैट इज द ऑफसेट. ऑफसेट, दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स दैट अकर्स इन सम एक्वाटिक प्लांट्स. ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट हेल्प इन द प्रोपगेशंस. इसमें क्या होता है, रनर की तरह ही ग्रोथ होता है, लेकिन दैट इज द एक्वाटिक प्लांट, मतलब यह एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ अपुंसिया, वाटर हायसिंथ जिसको कहते हैं, आइकार्निया, दिस इज कॉमनली नोन एज द. ठीक है, इसमें वो जुड़े रहते हैं और जैसे ही ब्रेक होता है ऑफसेट, उससे न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल आइकॉर्निया जिसको हम वाटर हायसिंथ बोलते हैं, पिस्टिया, दिस इज नोन एज द वाटर लेट्यूस. ओके, you see here is some example of the given, just like through the roots in case of dahlia, stem modification that is the tuber, rhizome that is given in case of ginger. You see through the diagrams. I hope that from diagram you clear about them. There is the root, dahlia में जो अंडरग्राउंड रूट होता है उसमें फूड स्टोरेज होता है, ये स्टीम में ट्यूबर्स इन केस ऑफ पोटैटोस, जिंजर in case of rhizomes. And next one सेंटेला जो भी बात कर रहे थे, मीन्स ब्राह्मी, शंखपुष्पी. ये इस तरह देखिए रनर है, कैसे ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, सरफेस पे ग्रोथ कर रहा है, जहाँ नोड्स आ रहे हैं इस तरह के वहाँ पर अटैच हो जाए, फिर अगेन ग्रोथ. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज गिवन द इन केस ऑफ ब्रायोफिलम्स. ब्रायोफिलम का लीफ दिया हुआ, लीफ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यू सी हियर, जहाँ से एपिकल नॉच निकला है वहाँ पर ये वेजिटेटिव
प्लांट का या प्रोपिग्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज क्लियर। एरियल स्टेम्स, कुछ प्लांट के एरियल जो ब्रांचेज होते हैं, स्टेम पार्ट होते हैं, दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ओपुंसिया सुगर केन। नागफनी जो होता है एरियल पार्ट होता है, यू नो अबाउट द जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर देखता है वो इसकी स्टेम होती है, स्टेम से न्यू स्टेम का फॉर्मेशन या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, शुगर कैन में भी स्टीम ही होता है, उसको कट करके यूज़ करते हैं आप, या प्लांट उसे लगा तो वहाँ से न्यू बर्ड्स जहाँ होते हैं वहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज क्लियर। एरियल पार्ट्स में थ्रू द लीव्स वी डिस्कस अबाउट देम, दैट इज इन केस ऑफ बिगोनिया, ब्रायोफिलम, एडिएंटम्स, जो इस पर एपिकल नॉचेस होते हैं वहाँ से इसमें ग्रोथ होता है, जस्ट लाइक यू सी इन प्रीवियस स्लाइड्स in case of bryophyllums. Okay, next one, that is the bulbils. Bulbils, these are multicellular fleshy buds that take part of the vegetative propagations. For example, in case of Agellis agave. Okay, in agave, bulbils are modified floral buds that develops on the flowering axis. They remains attached to the floral axis and germinate, means that is commonly just like a vivipary. Everyone know about the vivipary, means parent plant पर ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस नोन एज द viviparies. That is clear. So this is the different method of the natural method of vegetative propagations. I hope that all of you clear from this video. Next process, that is the artificial methods of vegetative propagations. Various methods of vegetative propagation which grow naturally are used by the plant growers and horticulturists. These man-made methods are called horticultural or artificial methods of vegetative propagations. ठीक है, इसको हम हॉर्टिकल्चर्स भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप, जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज द कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग आर कट पीस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज। ठीक है, प्लांट के रूट को, स्टेम को, लीव को कट करके प्लांटेड नर्सरी में उसको ग्रोथ कराते हैं। फॉर दिस रूट प्रॉम्प्टिंग केमिकल्स आर यूज्ड, और इसके लिए रूट ग्रोथ कराने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं। नॉर्मली यू नो अबाउट देम, आपका हार्मोन्स होता है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड्स, NAA नेप्थलिक एस्टिक एसिड्स। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं, एक केमिकल पार्ट्स है उसके। ठीक है, दैट इज यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ द रूट्स, चाहे स्टीम पार्ट का कट के यूज कर रहे हो, चाहे रूट कर रहे हो, चाहे लीफ कर रहे हो। ओके, just like root cutting in case of lemon, orange, blackberry. ओके, इन सब में क्या होता है, रूट कटिंग थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्टेम कटिंग्स। इन इट इज कॉमन मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशंस, नॉर्मली यू नो अबाउट देम, जस्ट लाइक इन केस ऑफ सिट्रस, ग्रेप्स, शुगर कैन, रोज़, चाइना रोज़, इस सब में हम स्टीम कट करके यूज़ करते हैं। क्लियर। लीफ कटिंग, देयर इज द स्पेशलाइज्ड लीफ इन विच दैट इज यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज द स्नेक प्लांट। दिस इज कॉमनली नोन एज द सेंसिवेरिया। याद रखिएगा, SANSEVIERIA, सेंसिवेरिया जो स्पीसीज है, इसमें लीफ को कट करके यूज़ किया था। दिस इज कॉमनली नोन एज द स्नेक प्लांट्स, एज वेल एज यू नो अबाउट देम इन केस ऑफ बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम्स। लीफ कटिंग करके यूज़ किया जाता है। क्लियर। सेकेंड प्रोसेस है लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग। इट इज ए टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग इन विच adventitious roots are induced to develop on a soft stems while it is still attached to the plants.
ठीक, इसमें क्या होता है लेयरिंग में, प्लांट से अटैच जो ब्रांचेज है उसको हम सॉइल के थ्रू नीचे ला करके उसको हम कवर कर देते हैं। ठीक, जब उसमें से रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कट करके ये उसको सेपरेट कर लेते हैं। दैट इज क्लियर। नॉर्मली दैट इज अकर इन केस ऑफ एप्पल्स, पीयर्स, ऑरेंज, गुआवा, ग्रेप्स, जैस्मिन, इन सब में लेयरिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। थर्ड वन इज द ग्राफ्टिंग। Grafting is a technique of the connecting two parts, usually a root system and a shoot system of two different plants in such a way that they unite and later develop a complete plants। इसमें ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक टेक्निक है जिसमें प्लांट के दो पार्ट यूज करते हैं, एक रूट को और एक स्टेम को, और दो डिफरेंट स्पीसीज को होता है, उसमें कट करके उसको यूज किया जाता है, ग्रोथ कराया जाता है। ठीक है। अ स्मॉल शूट्स ऑफ प्लांट्स विथ सुपीरियर कैरेक्टर इज एम्प्लॉयड। इसमें जो सुपीरियर कैरेक्टर प्लांट रखता है उसके सूट को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं रूट के साथ। इट इज कॉल्ड द ग्राफ्ट और सायन, SCION, सायन। ठीक है, इसको सयान बोलते हैं जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, और जिसमें ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। इट शुड हैव वन और सेवरल वर्ड्स। और जो सयान वाला पार्ट है, मतलब स्टेम वाला जो पार्ट है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें एक या एक से ज़्यादा बर्ड्स होने चाहिए। द रूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंस एंड हैज़ गुड रूट सिस्टम इज अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट। इट इज कॉल्ड द स्टॉक। ठीक है, और दूसरा जो प्लांट लेते हैं जो रूट है जो अटैच है सरफेस से, वह डिजीज फ्री प्लांट होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब हर कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहे। इस तरह के प्लांट में हम इसको ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लियर। यू सी देयर इज द सम गिवन द वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का एग्जांपल है। आगे बल्बिल्स प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस ऑफ ब्रायोफिल्म्स, ठीक है, लिप कट करके यूज़ किया जाता है, अभी बताया आपको, आर्टिफिशियली भी किया जाता है। ये ऑफसेट का दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये ब्रेक होता है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रनर की तरह ही ग्रोथ कर रहा है यूसी। जैसे रनर हम ग्रास बताया कि एक नोड्स होता है, इंटर नोड्स होते हैं, फिर नोड्स, इंटर नोड्स, इस तरह ग्रोथ करता है। जहाँ नोड्स होता है वहाँ से ग्रॉसेस में क्या निकलता है, रूट्स निकलते हैं। ठीक है, इस तरह ये ग्रोथ करते हैं। उसी तरह आपका वाटर हायसिंथ मीन्स दिस प्लांट्स, इसमें ये इस तरह का ग्रोथ करते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज द जलकुंभी। यदि जानते हो तो पॉन्ड में ब्लू कलर के फ्लावरिंग होती है, यही स्पीसीज है। ओके, जस्ट लाइक यू सी हियर दैट इज गिवन वन एग्जांपल ऑफ लेयरिंग। जैस्मिन में लेयरिंग है, दिख रहा है आपको, देखिए लेयरिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसको सॉइल से कवर कर दिया है। जब यहाँ रूट का फॉर्मेशन होता है तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं और ये न्यू प्लांट बन गया। इन केस ऑफ बम्बू भी होता है लेयरिंग। ओके, दिस इज गिवन द one example that is again given here is a runner you see here, and this is given the grafting process। इसको सैन पार्ट बोलते हैं स्टेम वाले पार्ट को, और ये स्टॉक है रूट वाला। ठीक है, जिसमें हम उसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसको जस्ट लाइक यू सी हियर, यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा रूट के साथ। ठीक है, और यहाँ से इसको कवर्ड कर दिया जाएगा और मॉइस्चर कंडीशंस को दिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंट टेक्निक that developed the new offspring from parents plants। okay, next process that is the tissue cultures। this is the very important technique। यह एक तरह का टेक्निक है, and in this methods includes propagations of plant by culturing the cells, tissue and organ which are called tissue cultures। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस में हम लेबोरेटरी कंडीशन में प्लांट के पार्ट को, जैसे सेल या टिश्यू या ऑर्गन को लेकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक यू सी देयर इज वन एग्जांपल ऑफ गिवन टिश्यू कल्चर्स।
टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, जो पेरेंट प्लांट है उसका हम वह पार्ट लेते हैं विच आर फ्री फ्रॉम द माइक्रोब, दिस इज नोन एज द एक्स प्लांट। ठीक है, नॉर्मली दैट इज यूज द सूट या लीफ के जो टिप होते हैं वी आर यूज हियर। ठीक है, एक्स प्लांट को लेकर के वी आर वॉश विद द एल्कोहल्स, एल्कोहल को वॉश करने के बाद फिर वॉश विद द वाटर, वाटर में वॉश करने के बाद देन केप्ट इनसाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में हम इसको एक्स प्लांट को रख देते हैं और लेबोरेटरी कंडीशन में वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 1 वीक्स के बाद नॉर्मली व्हेन वी सी हियर देयर इज द अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल्स, एक विदाउट स्ट्रक्चर का एक मास लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें ग्रोथ करता है जिसको हम कहते हैं कैलस। तो व्हाट इज द कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट इज नोन एज द कैलस। इस कैलस को जितने प्लांट आपको बनाने हैं उतने पार्ट में उसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, कैलस को डिफरेंट पार्ट में कट कर लीजिए। देन अगेन केप्ट इनसाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम, अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है, इसमें हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट अपेक्स जो ग्रोथ करता है, और रूट को ग्रोथ कराने के लिए क्या चाहिए, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इन दोनों को उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में मिक्स कर दिया जाता है और उसको उसमें जो पार्ट कैलस से कट किए हो उसमें डाल दिया जाता है। लेबोरेटरी कंडीशन में इसको टेस्ट ट्यूब में आपको रख दिया जाता है और नियर अबाउट 15 to 20 डेज बाद व्हेन यू ऑब्जर्व देम देयर इज द एक्स न्यू प्लांट्स आर ग्रोड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जस्ट लाइक यू सी है, और इसी कंडीशन में पड़ा रहता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर आपका मेंटेन किया हुआ है लेबोरेटरी कंडीशन में। और जब उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे या फील्ड में प्लांटलेट कर देंगे तो नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रोथ करता है। यही आपका टिश्यू कल्चर प्रोसेस है। दैट इज क्लियर, ओके। तो टिश्यू कल्चर में हम बताएं देयर आर 3 टर्म, वन इज द माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, दिस इज द मेथड्स माइक्रो प्रोपगेशन, दिस इज द वन प्रोसेस थ्रू विच देयर इज द development of thousands plant within a few hours। ठीक है, या within a few days 1000 प्लांट का ग्रोथ कराना, थोड़े से पार्ट को लेकर के उससे 1000 प्लांट का ग्रोथ कराना ही माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। सेकेंड वी डिस्कस अबाउट द एक्स प्लांट, मीन्स दैट इज द फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो माइक्रोब से फ्री हो उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। एंड कैलस दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ओके, वी डिस्कस अबाउट हियर व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। क्या एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट इट इज द ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सीडलेस प्लांट्स। ठीक है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है और उस तरह प्लांट किया जाता है जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, जस्ट लाइक इन केस ऑफ शुगर कैन, बनाना, सीडलेट ग्रेप्स, सीडलेस ऑरेंज एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट देयर इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसमें रैपिडली ग्रोथ करते हैं प्लांट। ठीक है, थर्ड वन सिंस प्लांट प्रोड्यूस थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स टिश्यू कल्चर के द्वारा ग्रोथ कराते हैं, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो सभी क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। एंड दिस जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, और एक तरह के जीन को ये शो करेंगे। दैट इज क्लियर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय प्लांट्स टिश्यू कल्चर हैज बीन अप्लाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, इसके थ्रू डिजीज फ्री प्लांट का ग्रोथ होता है। दैट इज क्लियर। गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, इस तरह के यदि अच्छे क्वालिटी के प्लांट है तो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम में उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, उसको हम उसी कंडीशन में रख सकते हैं, जैसे इंडेंजर्ड प्लांट हो उसको हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर।
And last one, that is the advantage, that is the transgenic plants can be produced and use tissue cultures. ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है, मीन्स दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीन को जिसमें मॉडिफाइड किया था, टिश्यू कल्चर में उसको हम ग्रोथ करा के स्टोर कर सकते हैं. व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. दैट इज क्लियर. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, vegetative propagules get easily decayed and are prone to viral bacterial and fungal disease. ठीक है, ये इजीली अफेक्टेड हो सकते हैं, वायरल फंगल या बैक्टीरियल डिजीज इसमें अफेक्टेड कर सकते हैं, जिसके कारण पूरा पूरा प्लांट ही आपका अफेक्टेड हो जाएगा. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, दैट इज देयर इज नो वेरिएशंस. ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, मीन्स दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द दे शोइंग द इवोल्यूशंस, मीन्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट दे कैन नॉट चेंज. यदि चेंज नहीं होंगे तो वो एडॉप्ट नहीं करेंगे. एंड लास्ट वन, देयर इज नो डिस्पर्सल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स. इसमें डिस्पर्सल वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स का नहीं होता, क्योंकि वहाँ से कट करते वही यूज़ करते हैं, या वहाँ प्लांट है वहीं पर ग्रोथ करता है. मीन्स देयर फॉर इट कॉजेज द ओवर क्राउडिंग, इसके कारण ओवर क्राउडिंग हो जाती है. मीन्स दैट इज द कंपटीशन फॉर देम, फॉर द न्यूट्रिएंट, फॉर द ग्रोथ. दैट इज क्लियर. ओके, thank you for watching the videos. If you like them, share and subscribe my channels. Thanks.